Hello students, welcome to the new video of Science Zone. This is our second video on chapter 15 probability from NCERT textbook. In our first video, we have covered the theory of probability. If you have not watched that video, I recommend to watch it first and then come to this video. In this video, we will cover exercises 15.1 and 15.2 from NCERT textbook. So, let's start our video with exercise 15.1, question number 1. First part, probability of an event E plus probability of an event not E equals to blank. एक event E की probability, उसका sum with the probability of event not E. Event not E means complement event of E. The sum of probabilities of an event and its complement is always 1. Second, probability of an event that cannot happen is एक ऐसा event जो हो नहीं सकता. For example, picking a red ball from a box of blue balls. This event cannot happen. You can never pick a red ball from the box of blue balls. तो ऐसे events की probability होती है 0. Such an events are called impossible events. Third, probability of an event that is certain to happen. For example, picking a blue ball from the box of blue balls. These events are certain to happen. They are sure to happen. We are sure कि ये events होंगे. तो इनकी probability होती है 1. And these events are called sure events. Fourth, sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is blank. किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो भी एलिमेंट्री इवेंट्स हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा कितना होता है 1. फिफ्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक एंड लेस देन और इक्वल टू ब्लैंक. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है? मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हो सकती है 0 जब वो इम्पॉसिबल इवेंट हो, और अगर इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो दैट कैन बी 1 अगर वो श्योर इवेंट होगी. पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट के अलावा जितने भी बाकी इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है. तो प्रोबेबिलिटी की रेंज हो जाती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. तो फर्स्ट ब्लैंक में 0 आएगा, सेकेंड ब्लैंक में 1 आएगा. टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल प्लीज वॉच आवर फर्स्ट वीडियो ऑन प्रोबेबिलिटी. Question number 2. Which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. आपको कुछ experiments दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है किनकी equally likely outcomes होंगी. Equally likely outcomes यानी the probability of all the outcomes of an experiment are equal. अगर आपका जो experiment है उसके जितने भी outcomes हैं उनकी probability equal आती है, यानी सारे outcomes के होने के बराबर chances होते हैं, तो हम कहते हैं this experiment have equally likely outcome. First part, a driver attempts to start a car. The car starts or does not start. Experiment क्या है? Experiment is starting a car. What are the two outcomes? First outcome is the car starts and second is the car does not start. ये equally likely outcome होगा? नहीं. It is not a case of equally likely outcome. Why? Because if the car is out of order, it will never start. Okay, so this is a case of not equally likely outcome. Second, a player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses the shot. Experiment क्या है? Shooting a basketball. Outcomes. First outcome, he or she shoots it and he or she misses it. ये दो हमारे outcomes हो जाएंगे. Is it equally likely? Again, no, it is also not equally likely outcome because this game depends on many factors. The height of the player, the distance from which the player is shooting, the experience of the player. इस तरह के बहुत सारे factors हैं जिसके ऊपर shooting और missing the shot depend करेगा. So, it is also a case of not equally likely outcome. Third, a trial is made to answer a true-false question. The answer is right or wrong. Experiment क्या है? Answering a true or false question.
आउटकम्स क्या हो जाएंगे? आंसर इज राइट, सेकेंड आउटकम, द आंसर इज रॉन्ग। ये इक्वली लाइकली होगा क्योंकि आपके पास दो ही आउटकम्स हैं, अगर आपका आंसर सही है या आपका आंसर गलत है। टोटल आउटकम्स 2, फेवरेबल आउटकम अगर आपका आंसर सही है तो 1, गलत है तो भी 1, तो 1/2 फॉर बोथ केसेस आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। फोर्थ, अ बेबी इज born, it is a boy or a girl. Experiment, a baby is born. Outcomes, first outcome it is a boy, second outcome it is a girl. Is it equally likely? Yes, again this is an equally likely outcome क्योंकि दो ही outcomes होने वाली हैं। फर्स्ट आउटकम होगी तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, सेकेंड के लिए भी 1/2, तो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। Now move on to question number 3. Why tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game? Tossing a coin को fair way क्यों माना जाता है? Because the experiment of tossing a coin has equally likely outcome. कभी भी आप coin toss करते हो तो what are the outcomes? Heads and tails. Probability of getting heads is 1/2. In the same way, probability of getting tails is also 1/2. Both the outcomes have equal probability, so they have equally likely outcome. Therefore, tossing a coin is considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game. Okay. Fourth question, which of the following cannot be probability of an event? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? हमने सीखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट lies between 0 to 1. मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, और जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो 0 से 1 के बीच में वेरी करती हैं। अब हमारी जो ऑप्शंस हैं 2/3, 2/3 मीन्स 0.6, तो इट कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ऑप्शन बी -1.5 नेगेटिव है, तो नेगेटिव है मीन्स लेस देन 0 हो गया, बट हमें पता है प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो बी कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। C is 15%, that is again 0.15, between 0 and 1 रेंज में ही वो भी आ रहा है। D 0.7, it is again in the range of probability. The only option is B -1.5, which cannot be the probability of any event. Fifth, probability of an event is 0.05. What is the probability of not E? आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 1, तो वहां से हमें पता चल जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो वो हमें मिल जाएगी 1 माइनस 0.05, दैट विल बी 0.95. Next question is question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. Malini take out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? Bag के अंदर किस टाइप की कैंडीज हैं? Lemon flavored candies. And she is trying to pick an orange flavored candy. Is it possible? No. This is a case of impossible event. So what will be the probability of this event? Probability will be 0. Second part, a lemon flavor candy. What is the probability that she takes out a lemon flavor candy? Bag contains all the candies of lemon flavor. So what will be the probability of this event? 1. And this event will be an example of sure event. Question number 7. It is given that in group of 3 students, probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? आपको क्या बताया है? 3 students का ग्रुप है, उसमें 2 students do not have the birthday on same day. उसकी probability है 0.992. अगर फर्स्ट इवेंट को हम E मान ले, E is the event that students do not have the birthday on same day, then you have to find what is the probability that they have
same birthday, तो it will be a complement event. तो from there हम find कर सकते हैं 1 minus 0.992 is equal to 0.008. Let's see question number 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है. क्या एक्सपेरिमेंट है? ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम द बैग. आपको एक बैग में से बॉल निकालना है. 2 इवेंट्स की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोली है. फर्स्ट इवेंट है द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड सेकेंड इवेंट है द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड. उन दोनों इवेंट्स की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले हम काम करते हैं. सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा? द एंटायर बैग. बैग के अंदर जितनी भी बॉल्स हैं दैट विल कम इन आवर सैंपल स्पेस. व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? 3 red balls and 5 black balls. So 3 plus 5 equals to 8. This is our total number of outcomes. First event is drawing a red ball. हम उसका नाम दे देते हैं E. Number of favorable outcomes. Red ball के लिए favorable outcomes कितनी red balls हैं हमारे पास? 3. तो favorable outcome 3. तो probability of E, that is drawing a red ball, is equal to 3 by 8. Number of favorable outcome upon total number of outcomes. Second event is drawing a not red ball. ये कैसा इवेंट हो गया? This is complement event of event E. ये E का complement event है. तो complement event की probability निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? 1 में से probability of the event को subtract कर दीजिए. तो you will get 5 by 8. Question number 9. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 रंग के मार्बल्स हैं. 5 marbles are of red color, 8 marbles are of white color and 4 marbles are of green color. The experiment is taking out 1 marble from the box. आपको probability निकालनी है 3 events की. First is probability of getting a red marble, second probability of getting a white marble and third probability of getting a not green marble. Sample space में जो हमारा पूरा box है वो आ जाएगा. Box के अंदर जितने भी marbles हैं they will come in sample space. Total number of outcomes 5 plus 8 plus 4. Total outcomes will be 17. Total number of marbles. First event E is drawing a red marble. So what will be the number of favorable outcome? There are 5 red marbles. So favorable outcome will be 5. Probability of taking out a red marble will be 5 by 17. Second part, drawing a white marble. What will be the number of favorable outcomes? How many white marbles are there? 8. So favorable outcomes will be 8. So probability of getting a white marble will be 8 upon 17. Third part, drawing a not green marble. अब आपको green marble नहीं चाहिए तो आपके favorable outcomes कौन हो जाएंगे? आपका red marble will be okay for you and white marble will also be okay for you. आपको केवल green नहीं चाहिए, बाकी कोई भी कलर आएगा वो चलेगा. तो favorable outcome will be 5 plus 8. 5 plus 8 will be 13. So probability of drawing a not green marble will be 13 upon 70. Now question number 10. A piggy bank contains 100 50 paisa coin, 50 1 rupee coins, 20 2 rupees coins and 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin, will not be a 5 rupees coin? Experiment is taking out one coin from the bank when the bank is turned upside down. आपके पास एक पिगी बैंक है, उसके अंदर 4 तरह के कॉइन्स हैं. 50 पैसा कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन,
2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन्स। जब आप बैंक को अपसाइड डाउन टर्न करते हैं तो उसमें से एक कॉइन फॉल करने की इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। आपको 2 इवेंट्स दिए हुए हैं, उनकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट इवेंट, द कॉइन फॉल विल बी अ 50 पैसा कॉइन, एंड सेकेंड इवेंट, द कॉइन फॉल विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। सबसे पहले सैंपल स्पेस देख लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा? पिगी बैंक के अंदर जितने भी कॉइन्स हैं वो सब हमारे सैंपल स्पेस का पार्ट बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 100 50 पैसा कॉइन प्लस 50 1 रुपी कॉइन प्लस 20 2 रुपीज कॉइन प्लस 10 5 रुपीज कॉइन। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 180। फर्स्ट इवेंट इज द कॉइन फॉल विल बी अ 50 पैसा कॉइन। आपका जो कॉइन गिरेगा वो कौन सा होगा? 50 पैसा कॉइन होगा। तो फेवरेबल आउटकम, हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन्स आर देयर? 100। तो फेवरेबल आउटकम विल बी 100. Therefore, probability of getting a 50 पैसा coin will be number of favorable outcome upon total number of outcome. Favorable outcome कितने हैं? 100 upon 180. जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5 upon 9. 5 by 9 will be our probability of getting a 50 पैसा coin. Now the second part, event F, the coin fall out is not a 5 rupees coin. जो कॉइन गिरेगा वो 5 रुपीज कॉइन नहीं होना चाहिए. इट कैन बी अ 50 पैसा कॉइन, इट कैन बी अ 1 रुपी कॉइन, इट कैन बी अ 2 रुपी कॉइन. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विल बी 100 प्लस 50 प्लस 20. 170 is the number of favorable outcome. So, probability of event F will be equal to number of favorable outcome, that is 170 upon total number of outcome, that is 180. So final probability will be 17 by 18. Question number 11. Gopi buys a fish from the shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that fish taken out is a male fish? आपको बताया है कि गोपी अपनी एक्वेरियम के लिए फिश परचेज करने गया है एक शॉप पे. शॉपकीपर के पास जो टैंक है उसके अंदर 5 मेल फिश हैं एंड 8 फीमेल फिशेज हैं. आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर वो शॉपकीपर रैंडमली एक फ़िश पिक करता है फॉर गोपी तो वो मेल फिश होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. सैम्पल स्पेस विल बी द फिशेज इन द टैंक. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 मेल फिश प्लस 8 फीमेल फिश. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे? 13. E is the event of taking out a male fish. So for taking out male fish, how many favorable outcomes are there? There are only 5 male fish. So favorable outcome will be 5. So probability of picking a male fish will be 5 upon 13. Now let's see question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcome. एक गेम है जिसमें एक एरो है जो रोटेट होता है और एक पॉइंट पे आके रुक जाता है. हमारे पास पॉइंटर्स में 8 नंबर दिए हुए हैं 1 से लेके 8 तक, तो किसी भी एक नंबर पे पॉइंट करते हुए रुक सकता है. What is the probability that it will point at first part 8, second part an odd number, third part number greater than 2 and fourth part a number less than 9. आपको 4 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. एक्सपेरिमेंट इज स्पिनिंग एन एरो. तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस हो जाएगा जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे. पॉसिबल आउटकम्स में कौन आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आउटकम्स हैं? टोटल 8 आउटकम्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 8. First event E is equal to the pointer stops at 8.
हाउ मैनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर? 8 में से केवल एक ही आउटकम है जब वो 8 पे आएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एट 8 विल बी 1 अपॉन 8. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सेकेंड पार्ट, एन ऑड नंबर. तो F is the event for pointing at an odd number. So how many favorable outcomes are there? Odd numbers will be 1, 3, 5 and 7. So there will be 4 favorable outcomes. So the probability of pointing at odd number will be 4 favorable outcomes upon total number of outcomes, that is 8. So the final probability will be 1 by 2. Third, पॉइंट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2. 2 से बड़े नंबर पे पॉइंट करना चाहिए, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे हमारे फेवरेबल आउटकम्स में आ गए. हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर? 6 फेवरेबल आउटकम्स आर देयर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एट अ नंबर ग्रेटर देन 2 विल बी 6 by 8, दैट विल बी 3 by 4. नेक्स्ट, अ नंबर लेस देन 9 से छोटे नंबर पे पॉइंट करें, तो ऑल द आउटकम्स आर लेस देन 9. तो फेवरेबल आउटकम्स विल बी 8 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज ऑल्सो 8. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एट अ नंबर लेस देन 9 विल बी 1. इट विल बी अ श्योर इवेंट. क्वेश्चन नंबर 13. अ डाई इज थ्रोन वंस. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर बिटवीन 2 and 6 and odd number. What is your experiment now? Throwing a die once. एक die को एक बार थ्रो किया है. What will be the sample space? Sample space will have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Total number of outcomes 6 outcomes. 1 से लेके 6 तक कोई भी एक नंबर आ सकता है, तो there will be total 6 outcomes. First event is getting a prime number. Let's say E is the event getting a prime number. Number of favorable outcomes. कितने prime numbers हैं इसमें? 1 is neither prime nor composite. तो never consider 1 in this. सबसे पहला prime number 2, then 3, then 5. तो how many prime numbers are there? 3. तो probability of getting a prime number will be 3 by 6. That will be 1 by 2. Second part, a number lying between 2 and 6. 2 और 6 के बीच में लाई करने वाला नंबर. तो इसमें हम 2 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे. उन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं, कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 3, 4 and 5. तो how many favorable outcomes are there? 3 favorable outcomes are there, and the probability of getting a number lying between 2 and 6 will be 3 by 6 again, that will be 1 by 2. Third part, getting an odd number. So how many odd numbers are there? 1 is an odd number, 3 and 5. Again, number of favorable outcome is 3, and probability of getting an odd number will be 3 by 6, that will be again 1 by 2. Question number 14. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of hearts, a spade and the queen of diamonds. Experiment is drawing a card from the well-shuffled deck of 52 cards. आपके पास एक deck of card है जिसके अंदर 52 कार्ड्स हैं और उसमें से आपको एक कार्ड पिक करना है और 6 आपको इवेंट्स दिए हुए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. सैम्पल स्पेस फॉर डेक ऑफ कार्ड हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन द फर्स्ट वीडियो, तो यहाँ पर हमें सैम्पल स्पेस को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. हमें यहाँ पे डायरेक्टली पता चल जाएगा सैम्पल स्पेस क्या होगा, एंटायर डेक ऑफ कार्ड्स. What will be the total number of outcomes? There are 52 cards in a deck of cards, तो हमारी total outcomes हो जाएंगी 52. First event E is getting a king of red color. Red color के 2 king होते हैं एक deck में, king of hearts and king of diamonds. So हमारी favorable outcomes हो जाएंगी 2. Therefore
the probability of getting a king of red color will be number of favorable outcomes upon total number of outcomes, that will be 2 by 52, that is 1 by 26. Second event is getting a face card. हमारे पास हर एक सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। टोटल हमारे पास 4 सूट्स होते हैं, इसलिए एक डेक के अंदर हमारे पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड क्या हो जाएगी, 12 अपॉन 52, जिसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 3 by 13। नेक्स्ट इवेंट इज गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। आपको अब फेस कार्ड पिक करना है, लेकिन कौन से कलर का, रेड कलर का। तो रेड सूट्स हमारे होते हैं हार्ट्स एंड डायमंड्स, तो 3 फेस कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 3 फेस कार्ड्स ऑफ डायमंड। सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारी हो जाएंगी 6, इसलिए हमारे जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 6 अपॉन 52, दैट इज 3 by 26। नेक्स्ट इवेंट इज गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट्स। हर एक सूट में एक टाइप का एक ही कार्ड होता है, सो जैक ऑफ हार्ट्स विल बी अ यूनिक कार्ड, देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी 1, इसलिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स विल बी 1 by 52। नेक्स्ट इवेंट इज गेटिंग अ स्पेड। स्पेड इज अ सूट, हर सूट के 13 कार्ड्स एक डेक में होते हैं, तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी हो जाएंगी, 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड विल बी 13 by 52, that is 1 by 4. And the last event that is given in the question is getting a queen of diamonds. A queen of diamonds, again diamonds में एक ही queen हो सकती है, तो the number of favorable outcomes will be 1. Therefore, the probability of getting a queen of diamonds will be 1 by 52. Question number 15. 5 cards, the 10, jack, queen, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. First part, what is the probability that the card is queen? Second part, if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is A an ace, B a queen? आपके पास 5 कार्ड्स हैं, डायमंड्स के चारों कार्ड्स हैं, पांचों कार्ड्स डायमंड सूट के ही हैं, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। उनको अच्छे से शफल करके उनके फेसेस डाउनवर्ड करके रख दिया गया। नाउ द एक्सपेरिमेंट इज टू पिक अ कार्ड फ्रॉम देम। There are 2 parts of this question. In the first part, they want you to find the probability that the card is the queen. And in second part, they are telling us if हमने फर्स्ट पार्ट में क्वीन को ड्रॉ किया और उसको अलग रख दिया, हमने वापस उन कार्ड्स के साथ उसको नहीं रखा, हमने क्वीन को सेपरेट कर दिया, तो अब जो बचे हुए कार्ड्स हैं उनमें से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक एस को पिक करने की और एक क्वीन को पिक करने की। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। व्हाट विल बी द सैम्पल स्पेस? इस बार हमारे पास 5 ही कार्ड हैं, तो सैम्पल स्पेस में हमारे 5 कार्ड्स आ जाएंगे, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 5। नाउ द फर्स्ट इवेंट इज ई, द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन। अब इन 5 कार्ड्स में से अगर हम क्वीन को ड्रॉ करते हैं तो हाउ मेनी क्वींस आर देयर? ओनली 1, तो फेवरेबल आउटकम विल बी 1, इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5। सेकेंड केस, अब हमने क्वीन को ड्रॉ करके साइड में पुट कर दिया है, यानी अब हमारे पास कौन कौन से कार्ड्स बचे? 10, जैक, किंग एंड एस। अब हमारे पास टोटल 4 कार्ड्स ही रिमेनिंग है, तो हमारी सैम्पल स्पेस हो जाएगी 10, जैक, किंग, एस और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 5। नाउ द नेक्स्ट इवेंट इज ड्रॉइंग एन एस। तो हमारे पास जो कार्ड्स बचे हैं उनमें से देयर इज ओनली 1 एस, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 1। सो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस विल बी 1/4। नेक्स्ट पार्ट बी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन? अब हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है उसमें क्वीन तो है ही नहीं, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन? दिस विल बी एन इम्पॉसिबल इवेंट और फेवरेबल आउटकम्स विल बी 0। Therefore, the probability of drawing the queen will be 0. Question number 16. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. हमारे पास 132 good pens थे, उनके अंदर 12 defective pens mix हो गए।
It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. All the pens are identical. आप केवल look से बता नहीं सकते कि कौन सा पेन defective है और कौन सा अच्छा है. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that pen taken out is good one. Now our experiment is to pick one pen from the lot, and our event is taking out a good pen. So what will be the sample space? The sample space will contain all kind of pens, good pens and bad pens. Total number of outcomes will be 132 good pens थे हमारे पास, उसमें 12 pens mix हो गए. So our total number of outcomes will be 144. Event is taking out a good pen. So how many good pens are there? 132. So number of favorable outcome will be 132. Therefore, the probability of taking out a good pen will be number of favorable outcome upon total number of outcome. Favorable outcome is 132 and total number of outcome is 144. Simplify कीजिए, you will get 11 upon 12. Question number 17, first part. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? हमारे पास एक lot of bulb है जिसमें 20 bulbs हैं. उसमें से 4 bulbs जो हैं वो defective हैं. Now our experiment is to draw one bulb at random from the lot, and we have to find the probability of the event that the bulb picked up is defective. So हमारे पास total number of bulbs कितने हैं? 20. उसमें से 16 bulbs are good because 4 bulbs तो हमारे defective हैं. ठीक है. So what will be the sample space? Sample space will be the lot of bulbs. Total number of outcomes, हमारे पास total कितने bulbs हैं? 20 bulbs. तो total number of outcomes will be 20. The first event is the bulb drawn is defective. How many defective bulbs are there? 4. So the probability of picking a defective bulb will be 4 by 20, that will be 1 upon 5. The second part says, suppose the bulb drawn in the first is not defective and is not replaced. Now, one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? Second part में क्या बोला है कि हमने जो first part में bulb pick किया था, that was not defective, that was a good bulb, और हमने उसको replace नहीं किया. तो अब हमारे पास जो lot है उसमें कितने bulbs हैं? 15 good bulbs हैं and 4 defective bulbs अभी भी वहीं पे हैं. और total number of bulbs अब कितने हो जाएंगे? 19, क्योंकि हमने एक bulb को निकाल के साइड में रख दिया, उसको replace नहीं किया है. और जो rest है यानी जो बचे हुए bulbs हैं उनमें से 1 bulb हम pick कर रहे हैं. Now we have to find the probability that this bulb is not defective. The event is bulb drawn is not defective. So what will be the total number of outcomes? The total number of outcomes will be 19. At this time sample space will be rest of the lot. ठीक है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमें कैसा बल्ब पिक करना है? विच इज नॉट डिफेक्टिव, यानी गुड बल्ब हमें पिक करना है. तो व्हाट विल बी द फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स? दैट विल बी 15. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट डिफेक्टिव बल्ब विल बी 15 upon 90. Question number 18. A box contains 90 discs, which are numbered 1 to 90. One disc is drawn at random from the box. Find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, or a number divisible by 5. आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 90 डिस्क हैं. डिस्क के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, 1 से लेके 90 तक नंबर्स लिखे हुए हैं. Now our experiment is to draw one disc from the box, and we have to find probability of the 3 events given to us. So what will be our sample space? The sample space will be number 1, 2, 3 till 90. ये सारे नंबर्स हमारे सैम्पल स्पेस में आ जाएंगे. तो व्हाट विल बी आवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? हाउ मेनी डिस्क्स आर देयर? 90 डिस्क्स आर देयर. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 90. फर्स्ट इवेंट is getting a disk which bears 2-digit number.
तो 2 डिजिट नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1 से लेके 9 तक 1 डिजिट नंबर होंगे और रिमेनिंग नंबर्स जो हैं हमारे 2 डिजिट नंबर होंगे. तो देयर विल बी 81 2 digit numbers. So the probability of picking a 2 digit number will be 81 upon 90. So that will be 9 by 10. Second part, the disc drawn bears a perfect square number. अब perfect square numbers कौन कौन से होंगे? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. There will be 9 perfect square numbers. So the probability of picking a perfect square disc will be 9 upon 90. That will be 1 by 10. Third part, the disc drawn bears a number divisible by 5. तो 5 के कितने मल्टीपल्स हमारे पास हैं फ्रॉम 1 to 90? देयर विल बी 18 मल्टीपल्स ऑफ 5. 5, 10, 15, 20, 25 टिल 90 अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने मल्टीपल्स होने वाले हैं? 18 मल्टीपल्स ऑफ 5 होने वाले हैं. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a disc bearing a number divisible by 5 will be 18 upon 90. That will be 1 upon 5. Question number 19. A child has a die whose 6 faces show the letter as given below: A, B, C, D, E, A. The die is thrown once. What is the probability of getting A and D? The experiment is throwing a die. Die के ऊपर जो faces पे letters लिखे हुए हैं वो हैं A, B, C, D, E and A. तो what will be our sample space? The sample space will contain all those letters A, B, C, D, E and A. Total number of outcomes, there are 6 letters and 6 faces. So what will be total number of outcome? 6. The first event is getting A. There are 2 favorable outcomes. 2 faces ऐसे हैं जिन पे A लिखा हुआ है, तो number of favorable outcomes will be 2. So the probability of getting A will be 2 by 6, which will be 1 by 3. Second part, getting D. So there is only one face which contains D. The number of favorable outcome is 1. So the probability of getting D will be 1 by 6. Question number 20. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in the figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? What is your experiment? The experiment is to drop the die in this rectangular region. Figure में जो हमें rectangular region दिया है उसके ऊपर हमें die throw करना है. And the event is that the die will land inside the circle. Circle के अंदर die land करे. That is our event and we have to find its probability कि क्या probability है कि हमारा जो die है वो इस circular region के अंदर fall करेगा. Okay, so what will be our sample space? Sample space will be the rectangular region. That means area of rectangle. That will be length into breadth. 3 into 2, that will be 6 meters square. तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हो जाएगा. तो टोटल आउटकम क्या होगी? टोटल आउटकम विल ऑल्सो बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगुलर रीजन मीन्स द सेम थिंग. तो टोटल आउटकम विल बी 6 मीटर स्क्वायर. फेवरेबल आउटकम, अब हमारा इवेंट क्या है? दैट द डाई ड्रॉप इनसाइड द सर्कल. तो द सर्कुलर रीजन विल बी आवर फेवरेबल आउटकम. तो हमें इस सर्कल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा. डायमीटर ऑफ सर्कल इज गिवन एज 1 मीटर. सो द रेडियस ऑफ सर्कल विल बी 1 by 2 मीटर. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. तो दैट विल बी पाई बाय 4. आर स्क्वायर मीन्स 1 by 2 का स्क्वायर. दैट विल बी 1 by 4. तो पाई बाय 4 मीटर स्क्वायर. दैट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल. दैट विल बी अवर फेवरेबल आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम विल बी पाई बाय 4 मीटर स्क्वायर. So the probability of the die dropping inside the circular region will be number of favorable outcome upon total number of outcome. Favorable outcome pi by 4, total number of outcome 6. So our probability will be pi upon
24. Question number 21. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good. Noori will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it and she will not buy it? आपको एक लॉट ऑफ बॉल पेन्स दे रखा है. टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 144, जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं और रिमेनिंग जो हैं वो गुड बॉल पेन्स हैं. यानी 144 में से 20 पेन्स डिफेक्टिव हैं एंड 124 पेन कैसे हैं? गुड हैं. ओके, नाउ द एक्सपेरिमेंट इज बाइंग द पेन. नूरी पेन परचेज करने गई है, वो हमारा एक्सपेरिमेंट है और उसमें 2 इवेंट्स हमें दिए हुए हैं. फर्स्ट इवेंट शी विल बाय इट, सेकेंड इवेंट शी विल नॉट बाय इट, और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों इवेंट्स की. सबसे पहले सैंपल स्पेस देखते हैं. सैंपल स्पेस में लॉट ऑफ बॉल पेन्स आ जाएगा. पूरा जो लॉट है वो हमारा सैंपल स्पेस बनाएगा. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल पेन्स हमारे पास कितने हैं? 144. तो हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगी 144. द फर्स्ट इवेंट इज शी विल बाय इट. अब वो उसे कब बाय कर रही है? व्हेन द पेन इज गुड. नूरी विल बाय इफ अ पेन इज गुड. तो हाउ मेनी गुड पेन्स आर देयर? 124. तो दैट विल बी आवर फेवरेबल आउटकम्स, 124. So what will be the probability that she will buy that pen? Probability of buying the pen is 124 upon 144. That will be equals to 31 upon 36. Okay. Second part. She will not buy it. She will not buy it means this is complement of event E. Event E क्या था? She will buy it. तो complement will be she will not buy it. So what will be the probability of not E? Probability of not E will be equal to 1 minus probability of E. So that will be 1 minus 31 upon 36. जब 1 में से 31 upon 36 आप माइनस करेंगे, you will get answer as 5 upon 36. That will be the probability that she will not buy it. Question number 22. 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. Complete the following table. आपको क्या बोला गया है? 2 डाइस हैं, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का है. दोनों डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है और आपको एक टेबल दिया हुआ है. उस टेबल को आपको कंप्लीट करना है. कभी भी हम एक डाई को 2 बार थ्रो करें या 2 अलग अलग डाइस को एक साथ थ्रो करें, दोनों एक्सपेरिमेंट्स की जो आउटकम होंगी वो हमेशा सेम होंगी. तो डाइस को जब भी हम थ्रो करते हैं, 2 डाइस को जब भी हम थ्रो करते हैं तो उनकी आउटकम्स क्या होती हैं? हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था ये टेबल बनाना. ठीक है, तो दिस विल बी द sample space. What will be the total number of outcome? There will be 36 total outcomes. अब हमें बोला है जो ये टेबल दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है. टेबल में क्या गिवन है? 2 रोज हैं. फर्स्ट रो में इवेंट्स दिए हुए हैं. इवेंट क्या है? सम ऑन द 2 डाइस. दोनों डाइस के टॉप फेस पे जो नंबर्स आते हैं उनका सम. हमें कितने सम्स दिए हुए हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. ये 11 हमें इवेंट्स दिए हुए हैं. अब इन 11 में से 3 इवेंट्स की हमें प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी फाइंड करके बताई हुई है. सम 2 है, 8 है और 12 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है. रिमेनिंग जो इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. फर्स्ट को कंसिडर करते हैं जब सम 3 आता है. जब सम 3 आता है तो उसके लिए हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी? 1,2 एंड 2,1. इनके अलावा किसी भी आउटकम में हमें जो सम है टॉप फेसेस के नंबर्स का वो 3 नहीं मिलने वाला. ओनली 1,2 दैट विल बी 3, 1 + 2 3 एंड 2,1 2 + 1 अगेन 3. तो हमारी फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएंगी? 2. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमें कितनी दी हुई है? 36. What will be our probability? The probability will be number of favorable outcomes upon total number of outcomes. How many favorable outcomes are there? 2 and total outcomes is 36. So the probability will be 2 by 36 जिसको आप further simplify करेंगे तो you will get 1 upon 18. Next sum is 4. जो दोनों numbers आ रहे हैं उनका sum 4 हो.
तो वो हमारा कौन से आउटकम्स में होने वाला है? 1, 3, 3 + 1 4 एंड 3, 1, 3 + 1 4. सेकेंड 2, 2, 2 + 2 4. इनके अलावा कहीं पे भी हमारा जो सम है वो 4 नहीं आने वाला. तो हमारी फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? 3 और टोटल आउटकम 36. तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/36, दैट विल बी 1/12. नेक्स्ट इवेंट इज सम इज 5. 5 सम हमारा कब आने वाला है? 4, 1 एंड 1, 4. ये दो आउटकम्स हो गए. दूसरा 2, 3 एंड 3, 2. इसके अलावा कभी भी हमें जो सम है वो 5 नहीं मिलने वाला है. सो हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? 4 एंड टोटल आउटकम्स इज 36. तो व्हाट विल बी आवर प्रोबेबिलिटी? 4/36, दैट विल बी 1/9. नेक्स्ट इज द सम इज 6. 6 सम हमें कब मिलेगा? 1 + 5 एंड 5 + 1. फिर 2 + 4 एंड 4 + 2. नेक्स्ट 3 + 3. केवल इतने 5 जो आउटकम्स हैं इन्हीं में हमें सम जो है वो 6 मिलने वाला है. तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36. तो हमारी प्रोबेबिलिटी विल बी 5/36. नेक्स्ट इज द सम इज 7, यानी आपका जो सम है वो 7 होगा. अब 7 सम हमें कब मिलने वाला है? फर्स्ट है हमारा 1, 6 एंड इसका उल्टा 6, 1 और 2, 5. 2 + 5 7, उसका उल्टा 5, 2. देन 3, 4 एंड 4, 3. तो कितनी आउटकम्स हुई हमारी? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो टोटल फेवरेबल आउटकम 6 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 36. 6/36, 1/6. वो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. इन द सेम वे सम 9 आता है, 10 आता है या 11 आता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इस टेबल में से. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट सेज अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability of 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. तो हमने ऊपर जो टेबल कंप्लीट किया उसमें हमने देखा 11 आउटकम्स थी, लेकिन क्या 11 आउटकम्स में सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 थी? नो, हर एक में हमें प्रोबेबिलिटी डिफरेंट मिल रही थी. 1/36, 1/18, 1/12 एंड सो ऑन. तो दैट विल बी आवर जस्टिफिकेशन फॉर सेइंग नो टू दिस सेकेंड पार्ट. Question number 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif win if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है जिसमें 1 रुपी कॉइन है, उसको 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं और जो आउटकम्स हैं उनको नोट डाउन कर रहे हैं. इवेंट आपको दिया हुआ है, हानिफ उसे विन करेगा या उसे लूज करेगा. 2 इवेंट्स हैं. ही विल विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, यानी अगर तीनों टॉसेस पे सेम रिजल्ट्स आता है, 3 हेड्स आते हैं या 3 टेल्स आते हैं, तो वो जीत जाएगा. अदरवाइज ही विल लूज द गेम. नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट हानिफ विल लूज द गेम. उसके गेम को हार जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको फाइंड करनी है. तो सबसे पहले सैंपल स्पेस देख लेते हैं. हमने फर्स्ट वीडियो में सैंपल स्पेस 3 टाइम्स अगर टॉस करते हैं कॉइन को तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा वो सीखा था. तो वहां से हमें सैंपल स्पेस मिल जाएगा. ठीक है, तो देयर विल बी 8 आउटकम्स. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी इक्वल टू 8. ओके, नाउ इवेंट इज हानिफ विल लूज द गेम. तो वो जीतने वाला कब है? जब उसको या तो 3 हेड्स मिले या 3 टेल्स मिले. तो ओनली 2 ऐसी आउटकम्स हैं जिसमें उसे तीनों हेड्स या तीनों
टेल्स मिलते हैं, उसके अलावा जितनी भी आउटकम्स हैं वो सब उसको लूज करने के लिए फेवरेबल हैं। तो हाउ मैनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर फॉर लूजिंग द गेम? 6, क्योंकि 6 बार तीनों हेड्स या तीनों टेल्स नहीं आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 6. So what will be the probability of losing the game? That will be number of favorable outcome 6 upon total number of outcomes 8. That will be 3/4. Question number 24. A die is thrown twice. What is the probability that first, 5 will not come up at either time? Second, 5 will come up at least once. अब आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें हम एक ही डाई को 2 बार थ्रो करते हैं, तो इसलिए इसमें भी भाई एक डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, तो हमारा सैंपल स्पेस विल बी सेम. नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट्स. फर्स्ट इवेंट है जिसमें 5 एक बार भी नहीं आ रहा है, जो आपने 2 बार उसको थ्रो किया दोनों में से एक बार भी 5 नहीं आता है. एंड द सेकेंड इवेंट इज 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस. 2 में से एक बार 5 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है. तो सैंपल स्पेस हमारा सेम हो गया. व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 36. फर्स्ट इवेंट E, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. दोनों में से एक बार भी 5 ना आए, उसकी क्या आउटकम है? तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स अब कौन सी हो जाएंगी? जिनमें 5 आ रहा है उनके अलावा वाले जितने भी आउटकम्स हैं वो सब हमारे फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएंगे. तो पहले हम उन आउटकम्स को मार्क कर लेते हैं जिनमें 5 आ रहा है. तो 5 के कॉलम में जितने आ रहे हैं और 5 की रो में जितने आउटकम्स आ रहे हैं, ये सब आउटकम्स हमारे क्या हो गए? जिनमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है. और हमारे फेवरेबल आउटकम्स कौन से होने वाले हैं? जिनमें 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. दोनों में से एक बार भी 5 ना आए. तो व्हाट विल बी आवर फेवरेबल आउटकम्स? हमारी फेवरेबल आउटकम्स ये सब हो जाएंगी, ये वाली आउटकम्स प्लस दीज आउटकम्स प्लस दीज आउटकम्स एंड दिस वन. टोटल आउटकम्स 36 थी. 36 में से अगर हम ये 11 आउटकम्स को माइनस कर दें तो हमें हमारी फेवरेबल आउटकम्स मिल जाएंगी. सो यहाँ पे हमारी फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगी 36 माइनस 11. 36 माइनस 11 करेंगे तो आपको मिल जाएंगी 25 फेवरेबल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स हमारी 36 थी. सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट E? प्रोबेबिलिटी ऑफ E will be equal to favorable outcome upon total number of outcome. Favorable कितनी है? 25 upon total outcome that is 36. तो ये हमारी होगी probability that 5 will not come up either times. सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड इवेंट है F, जिसमें 5 will come at least once. कम से कम एक बार 5 आना चाहिए. एक से ज़्यादा आएगा तो भी चलेगा, लेकिन एक बार तो 5 आना ही चाहिए. तो हमारी फेवरेबल आउटकम कौन सी हो जाएंगी? ये सारी 5 के कॉलम वाली और 5 के रो वाली. तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी हो जाएंगी अब? 11. और टोटल आउटकम्स तो 36 थी, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस विल बी 11 अपॉन 36. तो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reason for your answer. First part. If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes. 2 heads, 2 tails, or 1 of each. Therefore, each of these outcomes, the probability is 1/3. हमें बोला गया है कि अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 3 तरह की आउटकम्स हमें मिलती हैं. 2 हेड्स मिल सकते हैं, या फिर हमें 2 टेल्स मिल सकती हैं, या फिर 1 ऑफ ईच, यानी एक टेल्स मिलेगा एक हेड्स मिलेगा. इसलिए जो ये 3 तरह की आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होती है. अब हमें बताना है ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट है या नहीं है. दिस आर्ग्यूमेंट इज कम्प्लीटली फॉल्स. व्हाई? बिकॉज जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारी आउटकम्स होती हैं 2 हेड्स, 2 टेल्स एंड 1 ऑफ ईच. ये वाली जो आउटकम है उसमें हमें टेल्स एंड हेड्स मिल सकता है. फर्स्ट टॉस पे आपको टेल्स मिले, सेकंड टॉस पे आपको हेड्स मिले, ऐसा हो सकता है. या फिर फर्स्ट टॉस पे आपको हेड्स मिले और सेकंड टॉस पे आपको टेल्स मिले, ऐसा भी हो सकता है. अब ये जो 3 तरह की आउटकम्स हुई उनकी अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें, गेटिंग 2 हेड्स उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1/4. गेटिंग 2 टेल्स
उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारी हो जाएगी 1/4। बट जो थर्ड आउटकम है 1 ऑफ ईच, जो 1 ऑफ ईच वाली हमारी आउटकम है उसमें हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जा रही हैं 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 4, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2। तीनों में से किसी भी इवेंट में हमें 1/3 आउटकम नहीं मिली है, इसलिए ये वाली जो हमारी आर्ग्यूमेंट है इट इज कंप्लीटली फॉल्स। सेकेंड, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2। अब इस केस में हमें क्या बोला है कि जब हम किसी एक डाई को थ्रो करते हैं तो 2 तरह की आउटकम्स आती हैं। एक आउटकम होती है कि ऑड नंबर मिल जाए और दूसरी आउटकम होती है इवन नंबर मिल जाए। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स जो है वो 1/2 होता है। तो हम इसका सैम्पल स्पेस देख लेते हैं। जब भी हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे सैम्पल स्पेस में 6 आउटकम्स होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इनमें से जो ऑड नंबर्स हैं वो हैं 1 3 एंड 5। 3 ऑड नंबर्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारी कितनी हो जाती हैं 6, और फेवरेबल आउटकम फॉर एन ऑड नंबर कितने हैं फेवरेबल आउटकम 3, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट हमारा करेक्ट है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 1। 2 customers, Shyam and Ekta, are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on the same day? Second, consecutive days. Third, different days. 2 कस्टमर्स हैं श्याम और एकता, वो एक शॉप पे जा रहे हैं, वो एक ही वीक में उस शॉप में जा रहे हैं विजिट करने के लिए फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे। Both of them are equally likely to visit the shop on any day of the week. Now you have to find the probability of 3 events: the same day, consecutive days and different days. First of all, let's make the sample space. Shyam shop को visit कर सकता है on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Same way एकता भी ट्यूसडे से सैटरडे तक किसी भी दिन शॉप में विजिट कर सकती है। अगर हम केस कंसिडर करें कि श्याम ने ट्यूसडे को विजिट किया शॉप, तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आएंगे। अगर श्याम ट्यूसडे को विजिट करता है, हो सकता है एकता भी ट्यूसडे को विजिट करे, तो फर्स्ट आउटकम आ जाएगा ट्यूसडे। सेकेंड आउटकम, श्याम ने ट्यूसडे को किया लेकिन एकता वेडनेसडे को विजिट करती है, तो ट्यूसडे वेडनेसडे। इफ एकता विजिट्स ऑन थर्सडे, श्याम ने तो ट्यूसडे को ही विजिट किया है, तो हमारा आउटकम क्या हो जाएगा ट्यूसडे थर्सडे। सेम वे ट्यूसडे फ्राइडे, अगर एकता फ्राइडे को विजिट करती है, एंड ट्यूसडे सैटरडे इफ एकता विजिट्स द शॉप ऑन सैटरडे। इन द सेम वे अगर श्याम वेडनेसडे को विजिट करता है, उसके लिए भी हमें 5 आउटकम्स मिल जाएंगे। थर्सडे को विजिट करेगा, उसके लिए भी हमें 5 आउटकम्स मिल जाएंगे। फ्राइडे के लिए 5 आउटकम्स मिल जाएंगे एंड सैटरडे के लिए भी 5 आउटकम्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा पूरा सैम्पल स्पेस बन जाएगा जिसमें टोटल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे 25। फर्स्ट इवेंट देखते हैं, इफ दे विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। तो कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो देयर विल बी 5 favorable outcomes. Therefore, our probability will be number of favorable outcome upon total number of outcome. So the probability will be 5/25. Simplify करेंगे, we will get 1/5. Second case, if they visit on consecutive days. अगर वो consecutive days पे visit करते हैं, उसकी क्या probability होगी? Consecutive days means one after another day. जैसे अगर शाम वेडनेसडे को विजिट करता है तो एकता थर्सडे को विजिट करेगी। कंसिक्यूटिव डेज में अगर वो विजिट करते हैं तो हम देख लेते हैं पहले हमारी फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन सी हो जाती हैं। इफ श्याम विजिट्स ऑन ट्यूसडे, सरिता ऑन वेडनेसडे, दिस इज अ फेवरेबल आउटकम। वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे एंड थर्सडे वेडनेसडे. These are the 8 favorable outcomes. So, number of favorable outcomes will be 8. Therefore, the probability of their visiting on consecutive days will be 8/25. Last is if they visit on different days. तो same days वो कितने दिन visit कर रहे हैं? Only 5 days are the same days. Rest of them are different days. यानी this event G is complement of event
E. तो G is equal to E complement. तो probability of G will be equal to 1 minus probability of E. That is 1 minus 1 by 5. That will be 4 upon 5. Question number 2. A die is numbered in such a way that its faces show the numbers 1, 2, 2, 3, 3, 6. It is thrown 2 times and total score in 2 throws is noted. Complete the following table which gives a few values of total score on the 2 throws. What is the probability that the total score is first, even, second, sixth, third, at least 6? आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है जिसमें एक डाई को हम 2 बार थ्रो कर रहे हैं। उस डाई के जो फेसेस हैं उन पे नंबर्स हैं 1, 2, 2, 3, 3 एंड 6। इस एक्सपेरिमेंट में हम जब डाई को थ्रो करते हैं तो उनके अपर फेस पे जो नंबर्स आते हैं उनका टोटल स्कोर हम नोट डाउन कर रहे हैं। और उसी तरह से ये पूरा टेबल बनाया गया है। इसमें कुछ वैल्यूज़ आपको गिवन है और ये जो रेड कलर से वैल्यू है वहाँ पे आपको ब्लैंक गिवन है इन द टेक्स्ट बुक। तो आपको एक तो ये टेबल कंप्लीट करना है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको बोलता है 3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कि आपका सम जो है वो इवन नंबर्स आए, आपका सम 6 आए या आपका सम एटलीस्ट 6 आए। तो ये 3 इवेंट्स की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं कि टेबल को कैसे कंप्लीट करेंगे। टेबल में आपको फर्स्ट थ्रो में जो आउटकम्स मिलती हैं वो दी हैं और सेकंड थ्रो में जो आउटकम्स मिलती हैं वो भी दी हैं और इनका सम हमें नोट डाउन करना है। अगर इस ब्लॉक का हमें आंसर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये कौन से नंबर के कॉलम में आ रहा है, 1 के कॉलम में आ रहा है, कौन सी रो में आ रहा है, 2 की रो में आ रहा है, तो 2 + 1 3, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस वाले ब्लॉक में रो 3 की है और कॉलम 2 का है, तो 3 + 2 5। इन द सेम वे यहाँ पे हम देख लेते हैं इस वाले ब्लॉक में रो हमारी 3 की है और कॉलम जो है वो भी 3 का है, तो 3 + 3 6। इस तरह से आप किसी भी ब्लॉक में जो सम आएगा वो आप फाइंड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टोटल स्कोर्स की, उसका फर्स्ट है इवन नंबर। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लेते हैं। हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगी 36। फर्स्ट इवेंट को हम ई मान लेते हैं जिसमें हमें टोटल सम क्या मिलना चाहिए, इवन मिलना चाहिए। तो पहले हम इसमें अपनी फेवरेबल आउटकम्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन से सम्स हमें इवन मिल रहे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। यहाँ पे 18 आउटकम्स जो हैं वो हमारी इवन है, तो इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स पहले तो हमारी कितनी हो जाएंगी 18। Therefore, probability of E will be equal to 18 by 36. That will be 1 by 2. The probability of getting even number is 1 by 2. Second part is getting the sum 6. तो कितने बार हमें sum 6 मिल रहा है, देखिए 1, 2, 3 and 4. Number of favorable outcomes 4. So probability of F will be equals to 4 upon 36. आप सिंप्लीफाई कीजिए, you will get 1 upon 9. The last event is getting at least 6. At least 6 यानी कम से कम 6 आना चाहिए, 6 से ज़्यादा भी एक्सेप्टेबल है। थर्ड इवेंट के लिए हमारे फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, 7, 8, 8, 9। हमारा कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 6 होना चाहिए सम, 6 से ज़्यादा भी एक्सेप्टेबल होगा। तो हम देख लेते हैं कितने ऐसे आउटकम्स हैं हमारे लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So number of favorable outcomes is equal to 15. Therefore, probability of getting score at least 6, that is probability of G is equal to 15 upon 36, that will be 5 by 12. Question number 3. A bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing blue ball is double that of a red ball, determine the number of blue balls in the bag. आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि आपको एक बैग में से
बॉल को पिक करना है। बैग के अंदर किस तरह की बॉल्स हैं? 2 तरह की बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं एंड ब्लू बॉल्स हैं। रेड बॉल्स के हमें नंबर बताए हुए हैं कि देयर आर 5 रेड बॉल्स, बट ब्लू बॉल्स कितने हैं वो हमें नहीं पता, उनके नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें क्वेश्चन में बताई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल। रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है उससे डबल प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल की पिक होने की। हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ ब्लू बॉल, तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। हम सपोज कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x। हम ब्लू बॉल्स को x एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास x ब्लू बॉल्स हैं, तो हमारी टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? हमारे पास 5 रेड बॉल्स हैं और x ब्लू बॉल्स हैं, तो दोनों का सम कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिल जाएंगे, दैट विल बी x प्लस 5। दिस इज आर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमारे 2 इवेंट्स हैं, ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल एंड ड्रॉइंग अ रेड बॉल। दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। P of E will be the probability of drawing a blue ball. तो favorable outcomes for blue ball will be x and total number of outcomes is x plus 5. तो probability of picking a blue ball will be x upon x plus 5. In the same way, let's find the probability of another event, that is drawing a red ball. तो drawing a red ball की probability P of F will be equal to favorable outcomes. How many red balls are there? 5. तो फेवरेबल आउटकम्स 5 अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास? x प्लस 5। अब क्वेश्चन में जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ था वो क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ द रेड बॉल। ब्लू बॉल को पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल के डबल है, यानी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? P ऑफ E, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? P ऑफ F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब दोनों की प्रोबेबिलिटीज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमें क्या मिल जाएगा? x अपॉन x प्लस 5 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल इज इक्वल टू ट्वाइस 5 अपॉन x प्लस 5 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल। दोनों साइड से जो डिनोमिनेटर्स हैं सेम है, दे विल गेट कैंसल्ड आउट एंड फाइनली हमें आंसर क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर देयर? देयर आर 10 ब्लू बॉल्स इन द बैग। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉक्स कंटेन 12 balls out of which x are black. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? If 6 more black balls are put in the box, the probability of drawing a black ball is now double of what it was before. Find x. आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है जिसमें वी आर ड्रॉइंग 1 बॉल फ्रॉम अ बॉक्स। बॉक्स कौन सा है? ऐसा बॉक्स जिसके अंदर 12 बॉल्स हैं। 12 में से जो x बॉल्स हैं वो ब्लैक हैं। तो पहला हमें इवेंट दिया है कि इस बॉक्स में से जिसके अंदर 12 बॉल्स हैं जिसमें से x ब्लैक हैं, उसमें ब्लैक बॉल को पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करना है। देन दे टोल्ड अस कि वी हैव एडेड 6 मोर ब्लैक बॉल्स इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर हमने 6 ब्लैक बॉल्स और ऐड कर दी। अब हमारे बॉक्स में टोटल कितनी बॉल्स हो गई? पहले 12 थी और अभी हमने 6 न्यू बॉल्स ऐड कर दी, तो अब हमारे पास 18 बॉल्स हैं। तो इन 18 बॉल में से जब हम ब्लैक बॉल पिक करते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इट इज़ नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। यानी फर्स्ट केस में जो हमें प्रोबेबिलिटी मिली थी ब्लैक बॉल को ड्रॉ करने की, उसकी डबल प्रोबेबिलिटी हमको सेकेंड केस में मिलती है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट केस है उसके इवेंट को मान लेते हैं e। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e विल बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इवेंट क्या है? ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं? x और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e वाज x बाय 12। अब जो सेकेंड केस है हमारा, जिसमें हमने 6 मोर ब्लैक बॉल्स ऐड कर दी हैं बॉक्स में, तो इसलिए हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? अब 12 प्लस 6 दैट विल बी 18। और फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? हमारे पास x ब्लैक बॉल्स ऑलरेडी थे बॉक्स के अंदर और हमने 6 जो न्यू बॉल्स डाले हैं वो भी ब्लैक हैं, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे x प्लस 6। तो इस वाले इवेंट का नाम हम f दे देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f इज इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन 18। अब क्वेश्चन में जो हमें इंपॉर्टेंट एक रिलेशन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर।
अभी हमें जो प्रोबेबिलिटी मिली वो पहले वाली प्रोबेबिलिटी का डबल है, यानी P of F is equal to twice of P of E। वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। P of F x plus 6/18 is equal to 2 times of x upon 12। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 6 3 6 2 2 से 2 कैंसिल। फ्रॉम हियर x plus 6 is equal to 3x। This will give us 2x is equal to 6, therefore x is equal to 3. So there were 3 black balls in the box initially. Question number 5. A jar contains 24 marbles. Some are green and others are blue. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3. Find the number of blue marbles in the jar. आपको बताया है कि आपके पास एक जार है जिसके अंदर से आपको एक मार्बल ड्रॉ करना है। जार के अंदर टोटल 24 मार्बल्स हैं, जिसमें से कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू हैं। आपको ब्लू मार्बल्स का नंबर फाइंड करना है कि कितने ब्लू मार्बल्स हैं उस जार के अंदर। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में दी है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन मार्बल इज 2/3। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हम ब्लू मार्बल्स की नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं। लेट्स अज्यूम देयर आर x green marbles and y blue marbles in the jar. Now we know that probability of picking a green marble is 2/3. There will be 2 events. One event E हम मान लेते हैं picking a green marble and another event F is picking a blue marble. तो ये दोनों इवेंट्स किस तरह के हुए? These will be complement events. हमारे जार के अंदर 2 ही कलर के मार्बल्स हैं, ग्रीन एंड ब्लू। इफ वी आर पिकिंग अ ग्रीन मार्बल देन वी आर नॉट पिकिंग अ ब्लू मार्बल, और अगर हम ब्लू मार्बल पिक करें देन वी आर नॉट पिकिंग अ ग्रीन मार्बल। तो इवेंट F इज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट E. नाउ probability of E, that is probability of picking a green marble is given as 2/3. probability of E कितना है? 2/3 है। So probability of not E, that is probability of picking a not green marble, means probability of picking a blue marble will be 1 minus 2/3, that will be 1/3. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी 24। हमारे पास टोटल कितने मार्बल्स हैं? 24 मार्बल्स। फेवरेबल आउटकम्स यानी कौन से मार्बल्स? ब्लू मार्बल्स। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स? y। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E विल बी y अपॉन 24, which will be equal to 1/3. सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। 3 8s are 24. From here we will get the value of y is equal to 8. So there will be 8 blue marbles in the jar. So students, that is all for today's video. इस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 और 15.2 कंप्लीट की है। See you in the next video. Till then, keep learning, keep revising and keep practicing.